The chapter name is Mechanical Properties of Solids. ठीक है, Mechanical Properties of Solid. So elasticity, suppose you have a piece of some material, okay, a cylindrical wire of some material. Its length is a, cross section area is a, length is L, cross section area is a. ठीक है. Now what you do is you apply some force. So you clamp one end and put a force F. Okay. Or you, what you can also do is just pull from both sides. Okay. Pull from both sides, don't clamp. First thing you should understand from Newton's laws that both are same conditions, though both are not different. Clamping in one end does not mean कि इस end पे force नहीं, यहाँ पे force है. Of course, how it is clamped? The wall is pulling it with a force. Whatever force you are applying, the wall is also pulling same. Otherwise क्या होगा? ये move हो जाएगा right में. Correct. ठीक है. तो clamping does not mean कि वहाँ पे force नहीं. Clamping means it is same. Both cases are same. Understood? ये समझ में आया? If you, so both cases, the second case is where you are pulling both ends with F, and the first case was you clamp one end and then pull one end with F. Both are physics wise, force wise same, exactly same. Understood? ठीक है, पहले ये लिख लो. Second thing is, what do materials usually behave like is that if you apply a force, they will deform. Okay, they will slightly deform, they will extend. Okay, extend. Okay, this is called extension. If you are extending it, called extension. If you are pushing it, if your F is to the left, then it will be called compression, right? In any case, it is called deformation. Okay, it is called deformation. Generally, it is called deformation. If that deformation is extensive in nature, if you are increasing the length, and that is compressive in nature if you're decreasing the length. Okay, trying to decrease the length. Okay. Any deformation. So okay, now because of this deformation, जो body का dimension है, that will change. Dimension means a general term for length, breadth, height, area, whatever. Okay, dimension is a general term for length. Specifically here, which dimension is changing? The length is changing. We will also discuss कि area is decreasing. That also we can discuss, right? Area is decreasing or not. Their area is decreasing if you are assuming that volume is constant. If you're not assuming volume is constant, then area is not decreasing, right? Overall, the volume is increasing. Microscopically, what is happening is that two atoms के बीच में जो distance है, that is increasing, right? So two atoms के बीच का जो distance उसको बोलते क्या है? हाँ? Bond length. Bond length बोलते होंगे ना? ठीक. तो bond length से ज़्यादा distance हो रहा है, तो क्या होगा? वो stable है कि unstable है? Bond length itself was a stable distance, right? अगर तुम उसे बढ़ाओगे तो that the system is becoming unstable. It will try to come back. Therefore, what happens when you so this is important. When you remove this force, what happens? If you remove this external force, if we remove this external force F, okay, then what happens? So there are two things which can happen. First thing, returns to original. Okay, second thing, doesn't return to original. Return to what original? Original kya? Original dimension. Doesn't return to original. Understood? These are mota two categories. If it is returning to original, ठीक है? If when does it, कब बात करें? जब you remove the external force, तब, ठीक है? If it returns to original, it is called elastic material. If it does not return to original, it is called plastic. ठीक है? A material is perfectly elastic
If you extend it till here, and when you remove the F, it comes back here. So perfectly coming back to original position is called perfectly elastic. And a material is perfectly plastic if you extend it till here and then leave it, it stays as a new position. That is called perfectly plastic. Most materials are neither perfectly elastic nor perfectly plastic. They are in between. Okay, fine. Okay. There is a one common misconception. The common misconception is you think of elasticity and plasticity without this. What the meaning of this is? Let's say, so I'll okay. First, let us solve some questions, and then we will discuss. Okay, more. So I'm going to okay. I want to screen share. Hmm. Okay. So I'm stopping screen share and I'm sharing this question ka screenshot, and you guys can see an answer. Okay. Okay. So elasticity is the property due to which hmm? Apple, a body opposes deformation. Okay. More correctly, it should be how much does it comes back to original position after deformation. Okay. Second, the quality of the material that opposes the change in shape, volume, or length is called elasticity. Okay. Okay. Volume elasticity is possessed by all. Volume elasticity means if you're trying to increase or decrease the volume of something, ठीक है तो क्या होता है does it comes back to its original volume or not? very simple है. Okay. फोर्थ का क्या आंसर लग रहा है? It's a good question. Hmm? Option? Yes, it is C. Very good. Elasticity of metal cannot be changed by increasing or decreasing the property of magnitude of deforming. C. Elasticity is a property which describes whether it comes back to its original position on removing the disturbing force or not. That is elasticity. If you apply more force, it will deform more. But if you remove that force, it will come back to original position. Understood? That's why it doesn't matter how much you're applying. If something is purely elastic, it will come back. Understood? Okay. For fifth answer, fifth answer is irreversible deformation, right? Irreversible deformation means the deformation is already happened. It is not reversing. It is staying. Okay. Understood, everyone? Okay. सिक्स्थ का आंसर क्या है? इसको लिख लो. करेक्ट. सिक्स्थ का सी है. Elastic body completely regains its original dimensions when deforming forces are removed. I will leave class at 8 o'clock. ठीक है. These guys are here since morning. सिक्स का लिख लिया स्टेटमेंट. सिक्स का स्टेटमेंट लिखना है. When a elastic body completely regains its original dimensions when deforming forces are removed. ये पूरा स्टेटमेंट you have to write. Okay. Okay. Seventh, you have to see from the book. Eighth, generally a spring is made of steel instead of copper because steel is harder than copper, steel is not affected by weather, steel is inelastic, and copper is inelastic. Steel is more elastic than copper.
Steel is more elastic than copper. Correct. Ninth also do from book. 10th also do from book. 11th का answer, plastic bodies are which? One second, Netra, what is the answer for 11th? C. Okay. Cat. Okay. Yeah. 12th and 13 again. You guys do from your, you see, read book and then do. Okay. Okay. Now let us come to stress and strain. Okay. Stress and strain. Very important topic. Highly misunderstood. So read, listen carefully. What is strain? What is strain? See, you are applying a force. Because of that force, what is happening? What is the result you are seeing? Change in dimension. So let's say इसका डायमेंशन बढ़ गया, इसका लेंथ बढ़ गया. पहले लेंथ था एल, अभी ये एल प्लस डेल्टा एल. व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन इन जनरल, स्ट्रेन इज नथिंग बट चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन. ठीक. Very general, strain is change in dimension by original dimension. Okay. You can have change in length, you can have change in area, you can have change in volume. Okay. So you can have also change in angle. So you have different types of strain. ठीक है. तो स्ट्रेन के तीन टाइप्स तुम्हारे मेन सिलेबस में है. पहला है लॉन्गिट्यूडनल. मैं नाम भूल गया हूं तो एक बार बुक खोल के जरा देख लेना. हाँ, थ्योरी है उस बुक में. लॉन्गिट्यूडनल और शेयर. शेयर तो तीसरा होता है वहां, शेयर दूसरा होता है, शेयर दूसरा होता है. और फिर वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. ठीक है. तीन तरह का स्ट्रेन होता है. लॉन्गिट्यूडनल मतलब क्या होता है? बड़ा सिंपल है. एफ एंड स्ट्रेन. अच्छा, स्ट्रेन का सिंबल भी, स्ट्रेन का सिंबल है ये एप्सिलॉन करके. ठीक है. एफ एंड अलाइन, एफ एंड दिस अलाइन. ओके. इसका मतलब क्या है? आप, in which direction were you trying to expand this rod? Right, like this. So you're applying a force like this. And in which direction is the increase in length? Same. So F and इनका जो डायरेक्शन है वो अलाइन होता है. ठीक है. समझ में आया? Even if F is compressive in nature, the delta L will also be compressive in nature. Understood? So this is longitudinal strain. Okay. तो एक लॉन्गिट्यूडनल में दो तरह के. एक लॉन्गिट्यूडनल में फर्दर क्या होगा, कम एक होगा जिसमें इंक्रीज स्ट्रेन, मतलब एक कौन सा एक्सपेंशन स्ट्रेन, एक होगा कंप्रेशन स्ट्रेन. ठीक है. जो एक्सपेंशन स्ट्रेन होगा वो पॉजिटिव होगा क्योंकि चेंज इन डायमेंशन क्या हो रहा है? पॉजिटिव है. फॉर एग्जांपल अगर डेल्टा एल यहाँ पे रॉड का लेंथ बढ़ गया तो डेल्टा एल पॉजिटिव होगा. डेल्टा एल क्या होता है? एल फाइनल माइनस एन इनिशियल. तो डेल्टा एल पॉजिटिव होगा, यस और नो? और ओरिजिनल डायमेंशन तो एनीवे पॉजिटिव है. तो यू विल गेट एप्सिलॉन इज पॉजिटिव. एप्सिलॉन पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? इट इज अ एक्सपेंशन स्ट्रेन. ठीक. और अगर तुमने कंप्रेस किया था रॉड को कंप्रेस किया था तो इसका रॉड ऐसी हो जाएगी. तब डेल्टा एल क्या होगा? नेगेटिव होगा. डेल्टा एल विल बी नेगेटिव. और तो वो कौन सा स्ट्रेन है? कंप्रेसिव स्ट्रेन है. ठीक है. तो लॉन्गिट्यूडनल में कंप्रेसिव भी हो सकता है और एक्सपेंसिव स्ट्रेन भी हो सकता है, और दोनों. एक्सपेंशन स्ट्रेन इज पॉजिटिव वेयर एज एक्सपेंड सॉरी द कंप्रेशन स्ट्रेन इज नेगेटिव. ओके. और हमेशा स्ट्रेन इज मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू है, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन. ठीक है. फाइन. ओके. शेयर क्या होता है? शेयर स्ट्रेन ये होता है, देखो. तुमने मान लो बुक उठा ली, बुक आर डी शर्मा. आर डी शर्मा बुक मोटी सी बुक है ना एकदम. है क्या इधर पे? नहीं, ये भी यही बुक से कर सकते हो तुम. अबिता वाज आस्किंग क्या? एक्स्ट्रा आर डी शर्मा चेक कर लेना उसमें. तो आर डी शर्मा बुक तुमने उठा ली. ठीक है. और तुमने बुक कैसे रख दिया? आर डी शर्मा से ही काम होगा ये. ठीक है. एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी से नहीं होगा. तो क्या उसके पेजेस ऐसे ऐसे हैं और ये उसकी बाइंडिंग है. ठीक है. अब तुम क्या करोगे? तुमने ऐसे पाम रखो उस पर. ठीक है. और फिर पाम को ऐसे धक्का दो. पुश इट लाइक दिस. तो तो क्या होगा? बुक ना ऐसी हो जाएगी. ऐसी हो जाएगी ना. ये सुनो, समझ में आया? आ रहा है समझ में? ये सुनो.
गाइस, हेलो ऑनलाइन पीपल, ठीक है, हो गई ऐसे। अब फोर्सेस परपेंडिकुलर टू पैरेलल, ओके ओके ओके। अच्छा नहीं नहीं नहीं, फोर्स एंड ये अलाइन नहीं है, सॉरी सॉरी। एफ एंड एफ इज पैरेलल टू एरिया वेक्टर, ये है। मैं बस समझाता हूँ क्या है। एंड इसमें फोर्स इज परपेंडिकुलर टू, फोर्स नॉर्मल कैसे लग रहा है, एरिया वेक्टर ऐसा, हाँ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, करेक्ट, ये है एरिया वेक्टर। देखो एरिया वेक्टर क्या चीज होती है पहले बताता हूँ। व्हाट इज एरिया वेक्टर? आप आप फोर्स ऐसे लगा रहे हो, यहाँ पे ऐसे लगा रहे हो, किस एरिया पे लगा रहे हो? इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे लगा रहे हो, ठीक है। जिस भी एरिया पे लगा, कोई भी एरिया होता है ना, उसका एरिया वेक्टर होता है अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू दैट एरिया। एरिया वेक्टर मतलब, एरिया वेक्टर मींस वेक्टर परपेंडिकुलर टू एरिया, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं तुम्हें एग्जाम्पल बता देता हूँ पहले। मान लो ये एक्स वाई जेड एक्सिस है, ठीक है, एक्स वाई जेड, ठीक है। सो व्हाट इज द एरिया वेक्टर ऑफ एक्स वाई प्लेन? इट इज के कैप। अंडरस्टूड? व्हाट इज द एरिया वेक्टर ऑफ वाई जेड प्लेन? आई कैप। ऑल्सो अंडरस्टूड, इट इज प्लस और माइनस, दोनों चलेगा, दोनों चलेगा, ठीक है। और व्हाट इज एरिया वेक्टर ऑफ एक्स जेड प्लेन? जे कैप। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे, इसका एरिया वेक्टर ये था, है ना, और एफ भी ऐसे ही था, तो एफ इज परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर। इसमें एफ, देखो तुम हाथ से फोर्स ऐसे लगा रहे हो, और बुक का एरिया तो ऐसा है, तो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, ठीक है। शेयर इसी को बोलते हैं, शेयर मतलब होता भी वही है, शेयर इंग्लिश वर्ड है। व्हेन यू आर स्लाइसिंग, व्हेन यू आर ट्राइंग टू स्लाइस समथिंग, यू आर अप्लाइंग अ शेयर फोर्स, ओके। अगर तुम्हें कुकुम्बर को स्लाइस करना है, तो कुकुम्बर के एरिया के पैरेलल नाइफ चलाना पड़ेगा ना। समझ में आया? शेयर का मतलब समझ में आ गया? हाँ, ठीक। तीसरा होता है वॉल्यूमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक में क्या होता है, सब तुम हर तरफ से फोर्स लगा रहे होते हो, एवरीवेयर, एक डायरेक्शन नहीं होता, बल्क में फोर्स लगता है। सो वॉल्यूमेट्रिक इज लाइक, इफ देर इज अ, it is hard to imagine, but how the atmosphere is applying on a on a soap, on a water bubble, because what atmosphere is pressure, keep applying that pressure from all sides, okay. So that there is no direction, मतलब everywhere it is applying, okay. And volumetric stress strain जो होता है वो इसमें आता है, it is delta v by v, how much volume change, okay. Longitudinal is delta l by l। और शेयर का बताता हूँ कैसे मेजर करते हैं। तुम सोचो शेयर कैसे मेजर करते होंगे। जो बुक को ऐसे टिल्ट किया है, बुक कितना टिल्ट हुआ, ये कैसे पता चलेगा? एंगल से, या इस एंगल से ना। समझ में आया? अगर ये एंगल जीरो है तो देर इज नो टिल्टिंग। समझ में आया? तो ये जो एंगल है tan थीटा, दैट इज एक्चुअली, इन दिस केस इट इज tan थीटा, विच इज इक्वल टू, अगर tan थीटा लिखोगे तो इस ट्राइंगल में, बड़ा सा दिखा रहा हूँ ट्राइंगल करके, ठीक है। इस ट्राइंगल में tan थीटा है, अगर ये थीटा है, एक मिनट, if this is theta, then tan theta is x by l, yes or no? Yes or no? So tan theta is x by l, and what is x by l? X by l ये क्या है? This is displacement in line of force, yes or no? By dimension perpendicular to force, है ना। ध्यान से देखना, जो ऊपर वाला है दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन द लाइन ऑफ फोर्स, x इज अ डिस्प्लेसमेंट इन द लाइन ऑफ फोर्स, फोर्स ऐसे लग रहा है, ओके। एंड दिस l इज द डायमेंशन परपेंडिकुलर टू फोर्स। ये डायमेंशन जो था ये चेंज नहीं हो रहा डायमेंशन, अंडरस्टूड? ओके। ये स्ट्रेन समझ में आ गया? ठीक, तीन तरह का स्ट्रेन है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पे थोड़ा और बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस क्या होता है?
बस ईशा इज गोइंग थ्रू दिस डेज, एग्जाम चल रहे हैं ना उसके, क्लास में आना, स्ट्रेस क्या होता है देखो, वही एकदम एग्जैक्टली वही है। स्ट्रेस क्या आपको इन्वायरमेंट देता है? स्ट्रेस देखो, दो बच्चे हैं, एक है ईशा, ठीक है, और एक है अविता। अविता को कोई फर्क नहीं पड़ता एग्जाम चल रहा है कि नहीं, एग्जाम उसके भी चल रहे हैं, एग्जाम ईशा के भी चल रहे हैं। तो स्ट्रेस क्या चीज होती है? क्या वो बाहर वाला इन्वायरमेंट देता है आपको? डज द इन्वायरमेंट गिव यू स्ट्रेस? नो, स्ट्रेस समथिंग विच यू टेक। यस, सो इज स्ट्रेस एक्सटर्नल फोर्स? नो, no, stress is not external force. Stress is the internal response to the external force. That is very important. Stress is what? Internal response. बेचारी को इतना स्ट्रेस लिया तो तबीयत खराब हो गई, टू एफ एक्सटर्नल, ठीक है, इंटरनल रिस्पॉन्स टू एफ एक्सटर्नल, ठीक है। तो मान लो तुमने एक ऐसे एक इसको ऐसे एफ से खींचा, इस एफ से खींचने की वजह से तुमने दो मटेरियल, एक और है मटेरियल टू भी है, ठीक है, मटेरियल टू भी, मटेरियल वन है, मटेरियल टू है, दोनों में सेम एफ से खींचा। ये जो अंदर फोर्सेस डेवलप करता है, दैट ट्राइज टू रीगेन वापस आने के लिए जो ये फोर्स लगा रहा है उसको बोलते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस का सिंबल ये है, ठीक है, एंड दिस इज स्ट्रेस, एंड दैट स्ट्रेस इज इक्वल टू, द स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ इंटरनल बाय एरिया। बाय डेफिनेशन दिस इज एफ इंटरनल बाय एरिया, जो इंटरनल एफ लग रहा है ना यहाँ पे, एक एफ इंटरनल लग रहा है बाय एरिया, ठीक है, ठीक है। अगर ये बॉडी राइट नाउ इक्विलिब्रियम में है तो एफ इंटरनल मस्ट बी इक्वल टू एफ एक्सटर्नल। देयरफॉर स्ट्रेस नॉर्मली, यूजुअली 99% टाइम पे जब जहां भी तुम देखोगे, वहां वो एफ इंटरनल अलग से नहीं लिखेगा, वो डायरेक्टली एफ लिख देगा, और तुम इंटरनल हमेशा इसको एफ ही लोगे। पर हमेशा याद रखना कि इट इज अंडर द अजम्पशन कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ये नहीं, राइट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज नॉट फ्लाइंग अवे, इट इज नॉट ब्रेकिंग ऑफ, एंड देयरफॉर इफ इट इज नॉट ब्रेकिंग ऑफ, the f external must be equal to f internal. If I am pushing something, और ऐसे मैं एक स्ट्रिंग को ऐसे खींच रहा हूँ विथ सम 200 न्यूटन, और स्ट्रिंग टूट नहीं रही, तो स्ट्रिंग में टेंशन कितना है? 200 न्यूटन, समझ में आया ना? तो मोस्टली केसेस में क्या होता है, इंटरनल फोर्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स, बट स्ट्रेस इज डिफाइंड टू बी एफ इंटरनल बाई, इट इज नॉट एफ बाई एक्सटर्नल बाई, ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, ओके। So this is stress, and therefore stress is also three types. Again same चीज, स्ट्रेस भी तीन टाइप का है, एक है लॉन्गिट्यूडनल, फिर क्या था, शेयर, और क्या था, वॉल्यूमेट्रिक। इसको अलग से मत लिखना, ठीक है, इनके लेकिन अलग अलग नाम है, नाम नहीं है, नहीं नाम नहीं, यही है बस, ठीक है, सिग्मा, हाँ, ये समझ में आ गया इतना? ठीक। अब अच्छा चलो, स्ट्रेस का बताओ मुझे, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताओ, पढ़ो पीडीएफ, जोर से पढ़ो। क्या लगता है? स्ट्रेस लिख लो, उसका डेफिनेशन लिख लो। डन, ओके। क्वेश्चन, ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेसेस, 16, क्वेश्चन 16, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ओके गुड। 16 के बाद आते हैं जिसमें
इस पे आते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके 18th का आंसर, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स बाय एरिया ब्रो, इट इज प्रेशर ना, ठीक है प्रेशर। ओके ठीक है ओके। अभी एक क्वेश्चन मैं तुम्हें बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 है जैसे, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। An external force of 20 Newton acts normally on a rectangular plate of length 20 centimeter and breadth 10 centimeter. इसका एरिया कितना है? कितना है? ऐसा ही उन्होंने बोल, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर में कितना? 2 मीटर स्क्वायर। सही है क्या? सही बोला है? नहीं, So 0.2 meters square. 0.2 मीटर स्क्वायर ये एरिया है, ठीक है। इस पे कैसे लग रहा है फोर्स? नॉर्मली 20 न्यूटन लग रहा है फोर्स, ठीक है, नॉर्मली ऐसे 20 न्यूटन। मैक्सिमम स्ट्रेस, स्ट्रेस कितना प्रोड्यूस होगा? 20 फोर्स बाई एरिया, कितना एरिया? 0.2, 0.2 है, 4 डेसिमल है ना, 4 डेसिमल जाएंगे तो 0 पॉइंट, नहीं 0.02 नो, करेक्ट सही बोल रहे, 0.02। एक 200 इंटू 10⁻⁴ यही होगा। तो 3 0 होते तो यहाँ पे आता ना, 4 0 तो एक और इधर आएगा, तो 20/0.02 कितना आंसर है? या 1000 आंसर है? 1000। अब ये देखो एक चीज बड़ा कॉन्सेप्चुअली ध्यान से सुनना, इस पे कितना लगा रहे हैं हम? 20 न्यूटन, ठीक है। अगर, तो हमने अज्यूम किया कि जो एफ इंटरनल प्रोड्यूस हो रहा है वो 20 है ना, तभी तो ये इधर डाला। समझ में आया? ठीक। देखो ऐसा भी हो सकता है कि एफ इंटरनल 10 होता, 10 होता ना, 10 होता तो क्या होता? टेरा पार्ट हो जाता ना, टेरा पार्ट हो जाता, यस करेक्ट, 10 होता टेरा पार्ट हो जाता। तो मैक्सिमम कितना लगा सकता है ये? 20, ठीक है ना, करेक्ट। इसलिए 20 है यहाँ पे, अजम्पशन है कि टेयर नहीं हो रहा, ये अजम्पशन है, ठीक है। अच्छा ये भी हो सकता है कि 30 लगा ले, लगा सकता है ना, तो तब सब कुछ अजम्पशन क्या है? टेयर नहीं हो रहा और इक्विलिब्रियम में है, ठीक ओके। अभी मुझे चाहिए, दूसरा तो बाद में है, और स्ट्रेस से ब्रेक होता है, ठीक है। जैसे ब्रेकिंग स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस अगर एक पॉइंट से ऊपर चला जाता है, स्ट्रेस अगर एक पॉइंट से, कोई वायर है उसमें तुम खींच रहे हो उसको, तो अगर स्ट्रेस एक्सीड्स अ वैल्यू तो वो टूट जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 करो। हाँ, ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन, मुझे एक बार बुक भी दे दो मुझे, एक्चुअली मुझे बुक चाहिए। Sir, is 15th का answer radius of the wire? जस्ट अ मिनट, ओके। आई एम सॉरी, मटेरियल पे होना चाहिए ना, स्ट्रेस, स्ट्रेस इज फोर्स बाय एरिया, फोर्स पे तो है लेंथ, एक मिनट, ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ वायर, स्ट्रेस इज वाई टाइम्स स्ट्रेन, स्ट्रेस इज वाई टाइम्स स्ट्रेन, सो okay, so right, breaking stress is the intrinsic property of the material, लिखो, breaking stress is an intrinsic property of the material, so it doesn't depend on the dimension properties, it only depends on the material, understood?
ठीक है। क्वेश्चन नंबर question number 19. Question number 19 says A and B are two wires. The radius of A is twice that of B. RA is equal to 2 times RB. ठीक है। If they are stretched by the same load, stretched by the same load means what is the same for both of them? F is same for both of them. Stretched by the same load. And they're same material, everything else is same, only radius is different. Then stress is equal to force by area. ठीक है। तो स्ट्रेस ऑफ वन, स्ट्रेस देखो, स्ट्रेस ऑफ ए कितना आएगा, फोर्स बाई पाई आर ए स्क्वायर, यस और नो। और स्ट्रेस ऑफ बी कितना आएगा, सेम फोर्स बाई पाई आर बी स्क्वायर। ठीक है, अंडरस्टूड। और क्या बोला, रेडियस ऑफ टू इज ट्वाइस, तो यहाँ पे जो टू आएगा, टू का फैक्टर, उसका स्क्वायर करके क्या आएगा, फोर फैक्टर आएगा। तो सिग्मा बी इज सम कांस्टेंट एंड सिग्मा इज दैट सेम कांस्टेंट बाय 4, राइट। इफ यू टेक ऑल दिस पाई आर बी स्क्वायर, ये सबको के ले लेते हो, रेडियस ऑफ, नो, ए इज ट्वाइस ऑफ बी। तो वही तो लिखा मैंने, यहाँ पे टू डाला अगर मैंने, तो डिनोमिनेटर में फोर आएगा ना। समझ में आया कि नहीं? हम्म। तो व्हाट इज सिग्मा बी बाई सिग्मा ए? सिग्मा बी बाई सिग्मा ए इज के डिवाइड बाई के बाई फोर, सो इट इज फोर टाइम्स। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज स्ट्रेस ऑन बी, इज क्या आंसर है, फोर टाइम्स स्ट्रेस ऑन ए। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, a wire of length L can hold a maximum load W. Then length of wire is reduced to half. How much load it can hold? Wire of length L है, एरिया A, it can hold a maximum W. ठीक है, इस पे W टांग सकते हो आप। अगर L by 2 करोगे तो कितना टांग सकते हो, W ही, क्योंकि क्योंकि ब्रेकिंग स्ट्रेस में क्या है, फोर्स बाय एरिया आता है। फोर्स कितना, W टांग रहे हो आप, डिवाइड बाय एरिया। ये दोनों में से कुछ चेंज नहीं कर रहे, ना तो W चेंज कर रहे हो, मतलब सॉरी, मतलब अगर एरिया चेंज नहीं करोगे तो W भी, ब्रेकिंग स्ट्रेस के लिए W भी चेंज नहीं करना, सो देयरफॉर द आंसर इज W ओनली। अंडरस्टूड? इफ यू चेंज द एरिया देन ऑफ कोर्स द W चेंजेस। ओके, फाइन। क्रॉस सेक्शन एरिया, यस। ठीक है, 23 का सिमिलर आंसर जल्दी बोलो, देख के बोलो, बस 23 देख के बोलो क्या आंसर है। सॉरी, 40। ठीक है, ओके। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं 28, एक थोड़ा सा उसमें डायग्राम वायग्राम बन रहा है, एक 27 भी करेंगे। 27 says external force of 20 acts an angle 60 degree with the normal to the surface of a square plate. देखो थोड़ा समझते हैं ध्यान से, वर्ड सुनना, ठीक है। स्क्वायर प्लेट कितना साइड का है, साइड 20 सेंटीमीटर, ओके। एरिया साइड में लिख लेता हूँ 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अभी भी देखा है कि 0.04 मीटर स्क्वायर। अंडरस्टूड, क्लियर? वो बोल रहा है कि एक्ट्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द नॉर्मल टू द सरफेस। देखो ये है तुम्हारा सरफेस, ये सरफेस है, इसका नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर, वो जो रिफ्लेक्शन वाला बनाया था नॉर्मल, ठीक। एट ए 60 डिग्री टू दिस, 60 डिग्री टू दिस, ऐसे लग रहा है, 60 टू द नॉर्मल, ऐसे लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है, एफ। तो मुझे बताओ बच्चों, इस तरफ कितना होगा, इस तरफ कितना होगा, बोलो, ऑनलाइन बच्चे कुछ बोलिए। इन विच डायरेक्शन व्हाट इज द फोर्स, ऑनलाइन बच्चे तो बोलते ही नहीं है, चुप बैठे हुए हैं। द कंपोनेंट ऑफ दिस एफ टुवर्ड्स दिस, हाउ मच इज इट, कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट, अबिता,
हाउ मच इज, सॉरी F cos 60. जोर से बोल। F cos 60. नेत्रा, हाउ मच इज इट? तो F cos 60. ठीक है, so the stress is F perpendicular which is F cos 60 by area कितना है 0.04, F cos 60 है 10 क्योंकि 20 cos 60 is half, cos 60 is half by 0.04, तो आंसर आएगी हाँ 250, 250। ठीक है, नेक्स्ट 27 इज डी, करेक्ट। अब देखिए, अब बात है सबसे इंपॉर्टेंट चीज चैप्टर में, बड़ा एक लाइन का है, ठीक है वो। अच्छा एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। यूनिफॉर्म being pulled along a smooth, 28 कर रहा हूँ मैं, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L and density rho is being pulled along a smooth horizontal floor with acceleration A. Find the magnitude of the stress at the transverse cross section through the midpoint of the rod. तो ऐसा कुछ बोल रहा है कि ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन थ्रू द मिड पॉइंट, मतलब यहाँ पे क्या है, स्ट्रेस कितना है, वेरी नाइस। तो एक्सेलरेशन ए से जा रहा है, लेंथ एल है उसका। ट्रांसवर्स स्ट्रेस मतलब क्या हुआ, स्ट्रेस मतलब यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है ना, यहाँ पे कौन, चलो मान लो इसको देते हैं, इस पे कौन फोर्स लगा रहा है, तो कोई फोर्स लगा रहा है, ग्राउंड पे तो नहीं है कुछ, ग्राउंड तो फ्रिक्शन नहीं दे रहा, तो कौन लगा रहा है, कोई तो लगा रहा होगा, तभी तो एक्सेलरेशन जा रहा है। दिस पार्ट, राइट पार्ट, लेफ्ट पार्ट, इसको बोलते हैं लेफ्ट पार्ट, राइट पार्ट लगा रहा है ना कि नहीं लगा रहा है, यस, दैट्स व्हाई दिस लेफ्ट पार्ट इज मूविंग टू द राइट विद एक्सेलरेशन, यस और नो। ठीक है, सो इफ आई टेक दिस लेफ्ट पार्ट एज माय एफबीडी, इस पर राइट की तरफ फोर्स लगना चाहिए, कितना लगना चाहिए, एफ लगना चाहिए, यस और नो। हाँ, ठीक है, अब दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्ट, राइट। If you, what is the mass of this part, where I'm going to write F is equal to ma, right? So what is the mass of this part, m by 2, if I assume the total mass to be m, but can you see that the question में capital M नहीं बोला है, they have given density, तो मैं क्या करूंगा, डेंसिटी के लिए वॉल्यूम चाहिए, लेकिन वॉल्यूम के लिए भी उसने एक लेंथ तो दे रखी है, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं दे रखा, समझ में आया, तो मैं इसको क्रॉस सेक्शन एरिया ए मान लूंगा, ये मान लिया मैंने, ठीक है, ये ब्लॉक है, इट्स एन आइसक्रीम का वो जो डब्बा आता है ब्रिक, और वो जा रहा है, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है ए, तो उसका वॉल्यूम कितना हुआ, ए एल हुआ, यस और नो। अगर वॉल्यूम इतना है तो मास कितना हुआ, रो ए एल, पूरा ब्लॉक का मास कितना हुआ, सॉरी, देख, हाँ तो एल, लेकिन इसका मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो डायमेंशन है देख, ये ब्लॉक कुछ इस तरह का है, समझ में आया, इस पूरे क्रॉस सेक्शन को कैपिटल ए मान लिया, इसके इससे इंडिविजुअली ये बी और विड्थ कितना उसे मैटर नहीं करता, और ये लेंथ एल है, तो इसका वॉल्यूम हो गया ए एल, मास हो गया पूरे ब्लॉक का रो ए एल, तो हाफ ब्लॉक का मास कितना हुआ, रो ए एल बाई 2, है ना, उसका तो F इज दिस कैपिटल F मस्ट बी इक्वल टू मास टाइम्स रो ए एल बाई 2 का इनटू एक्सेलरेशन, दिस मस्ट बी योर F which is which is acting on where, which is, अगर तुम एक इमेजिनरी यहाँ पे लोगे ना क्रॉस सेक्शन एरिया बीच में, तो उस पर यही इफेक्ट कर रहा है ना, यस और नो, तो उस पर स्ट्रेस कितना है, स्ट्रेस इज फोर्स बाय एरिया, तो ए से डिवाइड करोगे तो रो एल ए बाई 2 आ जाएगा, समझ में आ गया, कैपिटल ए से डिवाइड करना है ना, this is the cross section area over which this force is acting, right, understood, कोई बात नहीं, बाद में थोड़ी देर सोचना और आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या था ये, 28, 28C, करेक्ट। अब देखो, अब वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 स्ट्रे है हुक्स लॉ, हुक्स लॉ, हुक्स लॉ says that the stress which is developed is proportional to strain, stress which is developed is proportional to strain, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल the stress which is developed is proportional to strain, longitudinal केस में यही लिखते हैं ना, स्ट्रेस स्ट्रेन, ये लिखते हैं ना, सो इन जनरल वो बोलता है स्ट्रेस, इन जनरल हुक्स लॉ बोलता है स्ट्रेस
is equal to E times of strain. Stress is some constant times strain, where E is the called coefficient of elasticity. कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो बेसिकली वो ये बोलता है तुम जितना स्ट्रेन करोगे, स्ट्रेन जितना तुम खींचने की कोशिश करोगे, उतना ही ऑब्जेक्ट में स्ट्रेस डेवलप होगा, ठीक है। ओके ओके। और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में ऐसे कर्व बनता है जिसमें एक्स इज स्ट्रेन, वाई इज स्ट्रेस एंड इट इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये है हुक्स लॉ। ऑल्सो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो ऊपर होता है ना, तो यहाँ पे स्ट्रेस इज डिपेंडेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट ये है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आप क्या चीज का चेंज कर रहे हो, आप स्ट्रेन चेंज कर रहे हो, आप जबरदस्ती जाके खींच रहे हो उसे, उसकी वजह से रिजल्ट क्या हो रहा है, उसमें स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज लाइक दिस। एक्स एक्सिस क्या होता है हमेशा इंडिपेंडेंट, वाई एक्सिस क्या होता है डिपेंडेंट, उल्टा नहीं होता है। स्ट्रेस इज नॉट व्हाट यू आर कॉजिंग, स्ट्रेस इज व्हाट इट इज रिएक्टिंग, ओके। इट्स अ सो इफ लाइक एक्शन रिएक्शन में ये एक्शन है और ये रिएक्शन है, ठीक है। ओके चलिए अभी अच्छा, और ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। और जो तीन केस तुमने बनाए थे ना, क्या बनाए थे, वॉल्यूमेट्रिक, ये सब बनाया था, तो सबका ना स्ट्रेस जो होता है, सॉरी लॉ इन डिफरेंट फॉर्म्स, हाँ। तो देखो क्या होता है, सुनो। लॉन्गिट्यूडनल में जो स्ट्रेस होता है वो होता है एफ बाई ए, और मैंने बोला इट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टू स्ट्रेन, राइट। सो लॉन्गिट्यूडनल में उस कांस्टेंट को जो वैसे जनरल कांस्टेंट का नाम क्या है, ई, कैपिटल ई। लॉन्गिट्यूडनल में उसको वाई बोलते हैं। तो ये अच्छा, ये चीज बताना क्या है, ये ई नहीं है, ये एप्सिलॉन है, ये स्ट्रेन है। सो दिस इज योर स्ट्रेस, this is stress, and this is strain, and this is called, what is this, this is called constant coefficient of elasticity for longitudinal. So what is coefficient of elasticity for longitudinal? It is called Young modulus, ठीक है। इट इज कॉल्ड यंग मॉडुलस वाई। फिर से बोल रहा हूं, जनरली स्ट्रेस इज इक्वल टू ई टाइम्स स्ट्रेन। व्हेन यू अप्लाई दिस फॉर लॉन्गिट्यूडनल, इट इज कॉल्ड स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई टाइम्स स्ट्रेन, ठीक है। इफ यू अप्लाई इट फॉर shear modulus, the stress is called g times strain. Strain in that case is theta, sometimes tan theta. तो ये स्ट्रेन के लिए कुछ भी यूज हो सकता है, कभी थीटा कभी tan theta. For small angles theta is equal to, नहीं, आइदर g थीटा होगा, कभी कभी g tan theta भी होगा। तो जो स्ट्रेन टर्म है ना, मैं कलर कर देता हूँ, जो स्ट्रेन टर्म है वो मैं ग्रीन से कलर कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और जो स्ट्रेस टर्म है उसको मैं पिंक से शेड कर रहा हूँ, और जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है उसको मैं करता हूँ ऑरेंज से शेड। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है भाई, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, जी। अंडरस्टूड। जी इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जी इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। में जी को मैं ऐसे ऐसे लिख रहा हूं ताकि तुम्हें याद रहे कि यहां से रिजिडिटी आया है, ठीक है। समझ में आ गया। अब तीसरा जो होता है उसका मैं बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है, वो थोड़ा सा अलग है। बट तुम लोग को यहाँ से तो तुम क्वेश्चंस कर सकते हो, फॉर एग्जांपल। तो जो तुम्हारा जो होमवर्क है वो तुम ट्राई करना। एक तो जो मैंने पढ़ाया आज पहला पार्ट, उसमें वो है 1 to 43 क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें मैंने बताया व्हाट इज स्ट्रेस स्ट्रेन, ये सब बताया मैंने, ठीक है। और दूसरा मैंने बोला हुक्स लॉ। हुक्स लॉ जो है उसका मैंने तुम्हें भी समझाया है, व्हाट इज हुक्स लॉ, कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। तो उसके उसके क्वेश्चन है 44 से लेके 52, ठीक है। मैं दो क्वेश्चन बता देता हूँ कैसे करते हैं, देखो। अच्छा, ये जो प्रोपोर्शनल था ना, कि ऊपर है स्ट्रेन, ऊपर है स्ट्रेस, वाई एक्सिस पे है स्ट्रेस, ये है स्ट्रेन, और ये ऐसे चल रहे हैं, ठीक है।
तो ये लिमिट तक ही प्रोपोर्शनल होते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये टेढ़ा मेढ़ा हो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। जब ये टेढ़ा हो गया तो रेड ऑनवर्ड्स ये प्रोपोर्शनल नहीं रहा, तो ये हुक्स लॉ नहीं कर रहा, हुक्स लॉ ये नहीं फॉलो कर रहा। अंडरस्टूड? कब तक इसने हुक्स लॉ फॉलो किया है? इस पॉइंट तक। उसके बाद क्या है, ये हुक्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा। अंडरस्टूड? मोस्ट मटेरियल ऐसे ही होते हैं, अप टू अ सर्टेन लिमिट हुक्स लॉ इज वैलिड, ठीक है। और देखो जैसे मान लो तुमने क्वेश्चन किया 45, बोलो 45, हुक्स लॉ states that stress is directly proportional to strain, correct. Or 46, according to Hooke's law, if stress is reduced to 1/3, the ratio of stress to strain remains constant. It's very good, because that is ratio of stress to strain is called coefficient of elasticity. It doesn't depend on your increase of stress or increase in strain. Okay. 47, Hooke's law defines modulus of elasticity. Yeah, correct. Next, 48. 48 का क्या आंसर है? लॉजिकली वायर इज लोडेड टिल इलास्टिक लिमिट। तो ये इसी को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, ठीक है। इस पॉइंट को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, जहां तक वो फॉलो होता है, उसके बाद नहीं होता। तो इलास्टिक लिमिट तक अगर है तब ठीक है, हुक्स लॉ इज फॉलोड। इलास्टिक लिमिट के बाहर चला गया तो फिर प्लास्टिसिटी आ जाती है। क्या आ जाती है? प्लास्टिसिटी, ठीक है। अच्छा, द कोएफिशिएंट इलास्टिसिटी नॉर्मली, ये सब मुझे नहीं पता, ये पढ़ना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डिस्कस करना है कि विच इज मोर इलास्टिक, विच इज मोर इलास्टिक, रबर और स्टील? This is a very common question. Steel. Why? Correct. So answer is, it is not, elasticity is not a function of how much you can stretch it. Elasticity is a property which says if you are able to stretch it, then is it coming back to original point or not after releasing that force. So if it is coming back to original point, it is called elastic. Very good, elastic. Steel will come back to original point, although you will have to apply a very large force to deform it. But that is not what elasticity says. Okay. Once you remove that very large force, does it come back to its original point or not? Okay. ये ध्यान रखना। और इसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर में मैं करवाऊंगा, नेक्स्ट टॉपिक में 8.4 मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इलास्टिक मॉडुलस, ये सब करवाऊंगा, ठीक है। हो जाएगा फिर ये चैप्टर। गाइस बाय बाय, do these questions, okay, which I have said.